Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Student, we are starting the new chapter of 8th class, that is synthetic fiber and plastic. So what are the topics we are covering in this chapter, students? We are learning, first we will know, we are learning in this one monomers and polymers. Monomers and polymers. Then we will see the topic natural and synthetic polymers. Natural and synthetic polymers. Then we are learning the properties and uses of some synthetic fibers. So properties and uses of some synthetic fiber. Then we learn about the uses of plastic and disadvantages. So all this topic we will cover. And last one is what are the ways of reducing plastic? How we will reduce plastic? What are the different ways? So we will learn in this topic monomers and polymers. Natural and synthetic polymers. That is synthetic polymers you can say, and the main is our synthetic polymer like nylon, polymer, acrylic. So all these other topic we will cover. Then the properties and uses of synthetic fibers or you can say synthetic polymers. Then we will see the uses of plastic and what are its disadvantages. Then what are the different ways of reducing plastic? So how we will reduce plastic? Because students, plastic is nowadays producing lot of pollution. So how we will reduce this plastic? Because plastic is non-biodegradable, and that's why we need that it's take lot of time in burning also. When we burn, then it is not biodegradable, okay, and it produce some harmful gases also. So we will need that we will use some alternate instead of the plastic, or how can we reduce the uses of this plastic. So now students, we are starting this topic. We have studied in earlier classes also fibers. So fibers, students, from where we obtain fibers? We obtain from plants and animals. कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स हमने क्या ऑब्टेन किया स्टूडेंट? कॉटन. प्लांट्स से कौन से? प्लांट्स से कॉटन से हम कॉटन फाइबर. जूट से हम क्या ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट्स? जूट फाइबर्स. नाउ एनिमल्स लाइक यू कैन से sheep, yak, goat, camel, silk moth. These are some animals which give us fibers. But these fibers, plants, from we are obtaining plants, animals, these are called natural fibers. ये कैसे fibers है students? Natural. Now there are some fibers also which are made by man. So natural fibers are also there. So natural fibers are also there students, and man-made also. Man-made. So man-made we also called synthetic fibers. Man-made को हम क्या कह सकते हैं? Synthetic fibers, or you can say artificial fibers. So either you say man-made, artificial fiber or synthetic fiber. So fibers क्या है? Naturally भी मिलते हैं और fibers man-made भी होते हैं. Man-made are called synthetic or natural. Natural fiber, just I know explained
that natural fiber will obtain from plants and animals. So now we will discuss about this artificial fibers. Okay, from where we will obtain all these things, this fiber, how they are prepared, how is they costly, cheaper, what are their advantages. Okay, what are their advantages and what are their characteristics. Okay, and what where we are uses, कहाँ हम उनको यूज़ कर रहे हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. सो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन आवर टॉपिक. तो स्टूडेंट्स, वी हैव सीन लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. हम घरों में बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं, लाइक यू कैन से बेडशीट, curtains, then clothes, then you can say this, you can say students, jute, fibers of jute. So different things around us we will see, they are made up of fiber, household articles which are made up of fibers. Okay, so bed sheet, curtain, clothes, jute carpets, jute bags. So all these are made up of fibers. But student, these fibers, the things which are made, these are of fibers are not same. Some fibers are natural we are using and some fibers are synthetic. कुछ फाइबर्स कौन से स्टूडेंट जो हम इन सब में जो फाइबर्स आप देखोगे बेटा, इसमें कुछ फाइबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, एंड इन सम सिंथेटिक फाइबर्स आर present. So in your house you can see all the around the different fibers present. So you can take a look of your house and try to separate which is the articles made up of natural fibers and which of the articles, or you can say household substances, are made up of synthetic fibers. So you will see, first you will find out from fibers, then you will see whether they are natural fiber or they are, so which type of fiber, natural fiber or they are made up of artificial fibers. Like you can say nylon, अभी हम पढ़ेंगे आगे बेटा, nylon, then you can say polyester. ठीक है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये सब क्या है बेटा, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, because they are made by man, they are not naturally present in our atmosphere, in our on the earth. Natural fibers, you can see jute bags, cotton clothes. So these are what, these are silk sarees, सिल्क के आप देखते हो सिल्क क्लोथ्स होते हैं. ओके, सो दीज आर व्हाट, जूट बैग्स, कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, दीज आर नेचुरल फाइबर्स. ओके, सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव सीन देयर आर different types of fibers, man made, all these things I have explained now. Okay, so in the previous classes we have seen natural fibers like cotton, wool are obtained from plants and animals. Now synthetic fibers कहाँ से मिलते हैं, made by human beings, that is why they are called synthetic or man-made fibers. The fibers which are made by human beings, जो fibers human beings बनाते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, man-made, और you can say synthetic fibers or artificial fibers. Understood the topic? Now we will see what we have discussed. फाइबर्स हमें क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स हमने, फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी. ओके, नेचुरल भी मिलते हैं और सिंथेटिक भी मिलते हैं. नेचुरल जो हमें ये सिल्क वूल जो मिल रहा है, कॉटन, ये नेचुरल हो गई, लेकिन जो नायलॉन, यू कैन से पॉलिस्टर, ये सब कौन से हो गए बेटा, दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर सिंथेटिक वन. So now we will see. You have seen this students. So what we have seen student, that these fibers. Now you will see this is a necklace. Okay, made up of small beads.
these small bits. Now you will see this is a paper clip made up of long chain of paper clips together. So 1, 2, all these are made up of a paper clip, and this paper clip joined together and make a long chain. So what I want to tell you here student, that you will see जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, व्हाट आई वांट टू टेल यू हेयर दैट जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये किससे बने होते हैं? स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. जैसे ये नेकलेस थे, स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर मिलके क्या बन गया था स्टूडेंट? ये स्मॉल यूनिट्स से नेकलेस ये बन गई थी नेकलेस. सो दिस स्मॉल यूनिट्स, इन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स. व्हाट वी कॉल दिस स्मॉल यूनिट स्टूडेंट्स? मोनोमर्स. तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग चेन किनकी होती है? वो इतने सिंथेटिक फाइबर्स की एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं. बट लॉन्ग चेन बनेगी कैसे स्टूडेंट्स? स्मॉल कुछ चीज़ें हम जोड़ेंगे तब ये सिंथेटिक फाइबर्स की क्या बन जाएगी? एक लॉन्ग चेन बन जाएगी. इन सिंथेटिक फाइबर्स की, इन जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स की स्मॉल यूनिट्स को हमने जोड़ रखा है, इन स्मॉल यूनिट्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स मोनोमर्स. व्हाट वी कॉल दिस स्मॉल यूनिट्स? दिस स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स. यू अंडरस्टूड? तो सिंथेटिक फाइबर्स है उनको हम जॉइंट टुगेदर करते हैं. बट जॉइंट टुगेदर सिंथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं? स्मॉल यूनिट्स को जब हमने जॉइन कर दिया टुगेदर तो वो क्या बना लेते हैं स्टूडेंट? एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, एक सिंगल लार्ज यूनिट जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर. व्हाट वी कॉल इट इज़ पॉलीमर. नाउ अगेन यू विल सी, जैसे आपने देखा था इस बीट के अंदर पीछे. सो सिंथेटिक फाइबर किससे बने होते हैं? स्मॉल यूनिट्स को जॉइन कर देते हैं टुगेदर, उनसे बने होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. स्मॉल यूनिट्स, अब ये स्मॉल यूनिट्स किसकी होती है? मोनोमर्स की. स्मॉल यूनिट्स, जैसे ये एक मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ. ये एक नेकलेस बना दी, ओके, बीड्स की. अब ये नेकलेस स्टूडेंट्स, ये नेकलेस किससे बनी हुई है? दिस नेकलेस इज मेड अप ऑफ स्मॉल बीड्स टुगेदर एंड मेक ए सिंगल सब्सटेंस. ओके, तो सेम लाइक दिस स्मॉल सब्सटेंस सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स. अब ये स्मॉल यूनिट्स, लॉन्ग चेन जो हमने बना दी स्मॉल यूनिट्स की, दिस स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड monomers. What we call these small units? These small units are called monomers. Now students, monomers, ये जो स्मॉल यूनिट्स है जिनको हम क्या कह रहे हैं? मोनोमर्स. एक्चुअली ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल सब्सटेंस होते हैं. ये मोनोमर्स क्या है? अब आप पूछोगे व्हाट इज़ मोनोमर्स? मोनोमर्स होते हैं स्टूडेंट्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं. ओके, सो मोनोमर्स मिलके क्या बन जाएगा? एक सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? मोनोमर्स को इकट्ठे हमने कर दिया तो वो एक यूनिट बन गई. उस एक यूनिट को हमने क्या बोला? व्हाट वी कॉल दिस स्मॉल यूनिट्स? दिस स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स. दिस इज कॉल्ड मोनोमर्स. स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स. नाउ स्टूडेंट, दिस मोनोमर्स एक्चुअली क्या है? केमिकल सब्सटेंस. स्मॉल यूनिट को क्या बोल दिया हमने? मोनोमर्स. मोनोमर्स क्या है? एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंस है. और ये मोनोमर्स कंबाइन, स्मॉल यूनिट को क्या बोल दिया हमने? मोनोमर्स. अब ये मोनोमर्स क्या होंगे? कंबाइन होंगे ताकि एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाए. अब ये मोनोमर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? कंबाइन होंगे. ये मोनोमर्स कंबाइन होंगे और कंबाइन होके क्या बन जाएगा? एक लार्ज सिंगल यूनिट. अब ये एक सिंगल यूनिट बन गई. जो नेकलेस क्या है? ये सिंगल यूनिट बन गई जिसको हम क्या बोलते हैं? इकट्ठे सभी को हम बोल देंगे वर्ड पॉलीमर. सो पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स. मोनोमर्स क्या है? एक्चुअल में केमिकल सब्सटेंसेस है. मोनोमर्स इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस. और मोनोमर्स इकट्ठे मिलके क्या बन जाएगा? एक स्मॉल कंबाइन करके क्या बन जाएगा बेटा? एक लार्ज सिंगल यूनिट बन जाएगी जिसको हम कहते हैं पॉलीमर. व्हाट वी कॉल दिस वन? पॉलीमर्स. सो मोनोमर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस. सो ईच मोनोमर को हम क्या कह सकते हैं? ईच मोनोमर इज कॉल्ड ए केमिकल सब्सटेंस एंड विच. अब ये मोनोमर्स केमिकल सब्सटेंस है. अब ये केमिकल सब्सटेंस को हमने क्या किया स्टूडेंट्स? कंबाइन कर लिया टुगेदर, कंबाइन कर लिया. नाउ इन्होंने क्या बना दिया? एक लार्ज सिंगल यूनिट बना दी.
लार्ज एक सिंगल यूनिट बन गई, इस एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर बन गए मोनोमर से। नाउ व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन। Now I will write here polymerization. Now you will see the process of joining together, the process of joining, the process of joining together of monomers. So the process of joining together of monomers to form a polymer, to form a polymer. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? is known as polymerization. POLYMERISA polymerization means मोनोमर्स को हमने मोनोमर्स मिलकर हमने क्या बना दिया स्टूडेंट? एक पॉलीमर बना दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर मोनोमर्स को टुगेदर जॉइन कर, वह प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स को हमने टुगेदर जॉइन करा दिया और जॉइन करके टुगेदर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पॉलीमर में। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? पॉलीमराइजेशन। व्हाट वी कॉल दिस वन? व्हेन मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स, this process is called polymerization. What we call this process? Polymerization. So joining together monomers को ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने के बाद क्या बन गया? सब्सटेंस पॉलीमर बन गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। व्हाट वी कॉल दिस? पॉलीमराइजेशन। अब बेटा पॉलीमर जो सब्सटेंस है वो टू मिल से बना है। पॉलीमर, पॉली मीन्स क्या हो गया? मैनी। पॉलीमर्स मतलब क्या हो गया? मैनी। तो हमने मैनी क्या लिया? बहुत सारे मोनोमर्स लिए हैं, तो मैनी मोनोमर्स को ज्वाइन करके क्या मिल गया हमें? यूनिट। और मर मीन्स क्या होता है बेटा? एक सिंगल यूनिट, एक यूनिट बना ली हमने। सो मर मीन्स एक सिंगल पार्ट, कोई भी एक पार्ट, कोई एक चीज़ बना ली, एक पार्ट बना लिया, एक सिंगल यूनिट। तो मर मीन्स क्या हो गया? एक सिंगल यूनिट बना ली। और पॉली मीन्स मैनी। सो मैनी चीज़ों को इकट्ठे जोड़कर मैनी थिंग्स को, मैनी मोनोमर्स को, आप स्मॉल यूनिट्स क्या होते हैं? मैनी मोनोमर्स। तो मैनी पॉलीमर्स का मतलब क्या हो गया? पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। सो मैनी मोनोमर्स को मिलकर एक क्या बना ली हमने? मैनी मोनोमर्स मिलकर एक यूनिट बना ली। उस एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट students this natural synthetic fibers. But before that one synthetic fiber, I want to tell you about that जो ये पॉलीमर्स होते हैं, जो हमने मोनोमर्स अभी डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स। सो दिस मोनोमर्स एक्चुअल में मोनोमर्स कंबाइन जो होते हैं ना, जो ये मोनोमर्स है स्टूडेंट, ये कंबाइन होते हैं। ये दो वे में कंबाइन हो सकते हैं, लीनियर वे में भी ऑल्सो, और यू कैन से क्रॉस व्हाट वी कॉल लीनियर फैशन में भी, और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, क्रॉस लिंक अरेंजमेंट में भी ये कंबाइन हो सकते हैं। व्हाट वी कॉल मोनोमर्स लीनियर वे में भी कंबाइन कर सकते हैं हम, और मोनोमर्स को हम क्रॉस लिंक अरेंजमेंट की तरफ से भी हम कंबाइन कर सकते हैं। मीन्स इन लीनियर फैशन में या क्रॉस लिंक फैशन, दो तरीके से हम मोनोमर्स को अरेंज कर सकते हैं। लीनियर कौन सा हो गया? जैसे आपने इसको लाइन में अरेंज कर दिया, ओके, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर। लीनियर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? आपने इसको एक लाइन में अरेंज कर दिया, लीनियर लाइन में, ओके। अब जो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, इन मोनोमर्स को हम कैसे अरेंज करें? तो एक तो हो गया लीनियर वे में और दूसरा हो गया क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। क्रॉस लिंक कैसे होता है स्टूडेंट? जैसे हमने इसको ऐसे अरेंज किया, ओके, देन इसको फर्दर हमने ऐसे भी अरेंज कर दिया, ओके, इस तरीके से ये किसी भी चीज़ को ऐसे फर्दर आगे इस तरीके से ये फर्दर आप इसको लॉन्ग में करते जाओगे। सो
इसको हमने इस तरीके से किया, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। और जो ये लाइन में ऐसे अरेंजमेंट कर दिया, इसको हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। सो मोनोमर को हम दो तरीके से अरेंज करके हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीमर में। वी विल कन्वर्ट मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स बाय टू वेज, अरेंजमेंट बाय लीनियर अरेंजमेंट और बाय अरेंजमेंट इज ऑफ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। सो क्रॉस लिंक इस तरीके से क्रॉस करके भी अरेंज कर दिया हमने मोनोमर्स को, फिर वो कन्वर्ट हो गए पॉलीमर में। इस तरीके से मोनोमर को हमने लीनियर वे में अरेंज कर दिया, फिर उनको हमने कन्वर्ट कर दिया पॉलीमर्स में। सो दो टाइप से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब मोनोमर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इन टू अरेंजमेंट की हेल्प से पॉलीमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या है स्टूडेंट? मोनोमर्स इज ए chemical substance. What is monomer? Monomer is a chemical substance or you can say small units. मोनोमर्स क्या है? स्मॉल यूनिट्स है जो इकट्ठे होके एक लार्ज सिंगल यूनिट बना रही है, एक लार्ज सिंगल यूनिट। ओके, नाउ वी विल सी दिस नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स में जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, नाउ स्टूडेंट वी हैव डिस्कस पॉलीमर। अब सेम पॉलीमर्स को भी हम स्टूडेंट्स नेचुरल और सिंथेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल एंड यू कैन से सिंथेटिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स? फाइबर्स लाइक वुल, ओके, फाइबर्स लाइक वुल, कॉटन, सिल्क, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। दीज आर व्हाट स्टूडेंट? नेचुरल पॉलीमर। दीज आर ऑल नेचुरल पॉलीमर। एंड यू कैन से रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स? सिंथेटिक पॉलीमर है। ऑल दीज आर व्हाट? सिंथेटिक पॉलीमर। ऑल दीज आर synthetic polymer. These are synthetic polymer. Synthetic polymers किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स? केमिकल सब्सटेंस से। सिंथेटिक पॉलीमर्स किससे बने होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस से क्या बने होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। और ये केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर इन द लेबोरेटरीज ऑल्सो, इन फैक्ट्रीज। ओके, सो केमिकल सब्सटेंसेस को हम सिंथेटिक ये होते हैं, मैन मेड नहीं होते, सो इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कहाँ पे? लेबोरेटरीज एंड फैक्ट्रीज। सो सिंथेटिक पॉलीमर एंड नेचुरल पॉलीमर। नाउ वी विल सी स्टूडेंट दैट सेलुलोज, what is the word you are seeing here? This cellulose. What you are seeing here student? This is cellulose. Now this cellulose is actual क्या है? Naturally, ये क्या है बेटा? Naturally occurring substance, naturally polymer है, naturally occurring polymer, naturally occurring polymer है ये, मतलब natural polymer, आप natural कह दो। के सेलुलोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। अब ये नेचुरल पॉलीमर्स किससे बना हुआ है? ये सेलुलोज ये बना हुआ है बेटा थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जब हम जॉइंट टुगेदर करेंगे, जॉइंट टुगेदर, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, कितने? थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जॉइंट टुगेदर। जॉइंट टुगेदर क्या बनाएंगे स्टूडेंट? ये टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ये क्या बना देंगे? एक लॉन्ग चेन, जिसको हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज किससे बना हुआ है? स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को हमने क्या कहा बेटा? मोनोमर्स। तो ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल छोटे छोटे हैं वो क्या हो गई? ये मोनोमर्स हो गए। तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके एक क्या बन गया? पॉलीमर बन गया। ओके, सो पॉलीमर ऑकर्स नेचुरली ऑल्सो। सो कॉटन किसका एग्जाम्पल है? कॉटन इज़ ए पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर है। सो कॉटन किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स? सेलुलोज से।
कॉटन के अंदर नेचुरली जो सब्सटेंस है वो क्या है, सेलुलोस है। और सेलुलोस किससे बना हुआ है, स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलके, ग्लूकोज की यूनिट्स, ये थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज की नियर अबाउट थाउजेंड्स यूनिट मिलकर क्या बन जाएगा, एक ग्लूकोज सेलुलोस बन जाएगा। ओके और कॉटन के अंदर जो नेचुरल पॉलीमर है वो क्या हो गया, इज़ ए पॉलीमर। कॉटन के अंदर, कॉटन फॉर एग्जांपल इज़ ए पॉलीमर। कॉटन क्या है बेटा, एक पॉलीमर है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोस। आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स भी है और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी है। सो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर का हमने एक एग्जांपल देखा है। सो कॉटन फॉर एग्जांपल इज़ ए पॉलीमर। कॉटन क्या है बेटा, एक पॉलीमर है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुलोस। व्हाट वी कॉल्ड सेलुलोस। सो नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, जूट। सो नेचुरल फाइबर जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, लाइक यू कैन से कॉटन, जूट, ये सब क्या है बेटा, आर मेड ऑफ सेलुलोस। ये किससे बने हुए हैं स्टूडेंट्स, सेलुलोस से। सो नेचुरल फाइबर्स जिसको आप कहते हैं, सो नेचुरल फाइबर्स है जैसे कॉटन, जूट, ये सब नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, जूट, ये सब किससे बने होते हैं बेटा, सेलुलोस से बने होते हैं। इट इज़ क्लियर। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट वन इज़ रेयॉन। Now students, I will discuss before this rayon. I will tell you what are the polymers what are these advantages of synthetic polymers. What are the advantages of synthetic polymers? So we will see the advantages. So what are the properties we are discussing students? So advantages of synthetic polymer. Advantages क्या है, ये synthetic polymers we are studying, but why we are studying this synthetic polymers? कुछ तो इनके advantages होगी ना. So what are these advantages? Number 1, do not corrode. Corrode means you, आप कह दो जैसे मेटल है, मेटल किसी चीज़ से रिएक्ट करके अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, corrode. ओके, corrosion. corrode बोल दो, corrosion बोल दो. ओके, सो जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं दे डू नॉट corrode. Second is that they can be given various. Second is what? They can be given various colors. They can be given various colors. So what is the third point students? That they can be made into different shapes. हम उनको डिफरेंट सिंथेटिक जितने भी पॉलीमर्स है they are made into different shapes. We can give them various colors. हम अलग अलग उनको कलर भी कर सकते हैं. डिफरेंट शेप ऑल्सो वी कैन मेड एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सिंथेटिक पॉलीमर्स आर स्टूडेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन से दे आर चीपर ऑल्सो. चीपर मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, इनएक्सपेंसिव. आप कह सकते हो सस्ते भी हैं ये. ओके, सो एडवांटेजेस क्या है, नॉट कोरोड, गिवन डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड दे आर cheaper. That's why we are using synthetic fibers. That's why we are using synthetic fibers. Now we will see disadvantages. So what we are discussing students now, the disadvantages of synthetic polymer. What is the first disadvantages? That first disadvantages students, they are non-biodegradable, means they are not digested, decomposed by bacteria and fungi into soil. So they are non-biodegradable, they cannot be decomposed by bacteria. Okay, they are not decomposed by bacteria, they are non-biodegradable. Second, these synthetic polymers catch fire easily. These are the synthetic polymers which catch fire easily. Second is this is second disadvantage. Third student क्या है, when we burn this synthetic polymers को हम बर्न करेंगे, so they produce poisonous gases. Which gases students? Poisonous gases they are producing. So all these topics we have covered. First we have seen natural fibers and man-made fibers. Then we have discussed natural fibers, cotton, jute,
Natural fibers we will obtain from plants also and animals also. सो नेचुरल फाइबर्स हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? नेचुरल फाइबर्स हमने प्लांट से भी मिल रहा है हमें, एंड प्लांट से भी मिल रहा है हमें, एंड एनिमल से भी मिल रहे हैं नेचुरल फाइबर्स. देन व्हाट वी हैव सीन सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स के हमने क्या डिस्कस किया है? सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वी हैव डिस्कस्ड. एक रिकैप कर रहे हैं हमने इस टॉपिक में क्या किया है. देन वी हैव स्टडीड द सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअल में बने कैसे होते हैं. तो ये किससे सिंथेटिक फाइबर जितने भी होते हैं बेटा, ये मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं, और इन मोनोमर्स को जब हम पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. व्हाट वी कॉल इट? पॉलीमराइजेशन. ओके ये जो स्मॉल मोनोमर्स है, स्मॉल यूनिट्स मिलके एक बिग सिंगल यूनिट बना लेती है. इस बिग सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर. इन स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स. मोनोमर्स एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स? केमिकल सब्सटेंसेस है. मोनोमर्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस है. सो ये हमने इस टॉपिक के बारे में कवर किया है. और द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स विच दे हैव गिवन द रिस्पॉन्स करेक्ट in my previous videos, I will announce the name of the students now. So who have given me the correct answer? So students, the name of the students who have given the correct response. First answer was beta sulfuric acid, king of acid, and second the gas which is poisonous is carbon monoxide. So correct response was given by the students. Name I am announcing. So I am very happy to announce the name of the students. That is Nishant first, Irfan Khan second, Riya third, fourth Mansi, fifth Ashish, fifth is Ashish Lora, sixth is Akash, seventh Naresh Kumar, eighth student is Yuvraj, ninth Amit, 10th Lokesh, Amit G here, 11th student Priyanshu Rahar, 12 Akhil, 12th is Akhil, 13th Bhupender. So these are the students who have given me the correct response. So very very heartiest congratulations from me that you have given the correct response and watching the videos regularly. Now students, today's question is that rayon, nylon is an example of a rayon nylon. ये क्या है? Rayon nylon is an example of synthetic fiber, B natural fiber, C both A and B, or D student none of these. Okay, so rayon nylon is what? Is an example of, किसके एग्जाम्पल है रेयन नाइलन? सिंथेटिक फाइबर्स के है, नेचुरल फाइबर्स, बोथ दोनों के ही एग्जाम्पल है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, एंड नॉन ऑफ दिस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.